ہم یوگی کی اما کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ انہوں نے تب سے طے کیا کہ ہم اگر 500 روپے پر ڈے کماتے ہیں تو 100 روپے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم اٹھا کر رکھیں گے۔ تب سے انہوں نے طے کیا کہ ہم کچھ بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ محنت شروع کی تعلیم پر، زیادہ نہیں، صرف 76 سال گزرے ہیں، صرف 76 سال۔ آج یہودی سے ہاتھ ملانے کے لیے دنیا کی دوسری قوم تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی مضبوط طاقتور قوم۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آئی فون، میڈ ان یہودی۔ آپ شیمپو استعمال کرتے ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈر اور ڈب شیمپو، واٹیکا شیمپو، یہ سب میڈ ان یہودی۔ آپ کوکا کولا، تھمس اپ، میرنڈا، اسپرائٹ پیتے، یہ سب میڈ ان یہودی۔ آپ فیئر لولی استعمال کرتے ہیں، آپ فیئر ہینڈسم استعمال کرتے ہیں، کریم میڈ ان یہودی۔ آپ بال کو کلر کرنے کے لیے باریر اور لورل فرین یوز کرتے ہیں، یہ سب میڈ ان یہودی۔ آپ پیتے ہیں پیزا اور برگر، میڈ ان یہودی۔ آپ پیپسی کھاتے ہیں، میڈ ان یہودی۔ آج دوائی استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی دنیا میں جائیں گے تو 75% دوائی اگر کسی کی ہے تو میڈ ان یہودی، یہودیوں کے بنائے ہوئے ہے۔ یعنی یہودیوں نے پچھلے 75 سال میں موبائل سے لے کر برش میڈ ان یہودی، کولگیٹ پیسٹ میڈ ان یہودی۔ یہودی 780 پروڈکٹ بنایا، دنیا کو فروخت کیا، بیچا۔ ان میں سے 320 بھارت کے اندر اس کے خریدنے والے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس جو موبائل ہے نوکیا، میڈ ان یہودی۔ آئی فون، ایپل، میڈ ان یہودی۔ موٹرولا، میڈ ان یہودی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں سب میڈ ان یہودی۔ یعنی پچھلے 75 سال میں ان یہودیوں نے اتنی تعلیم پر محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے کہ آج دنیا ان سے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تعلیم کے ذریعے سے اتنی طاقتور بنی ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر سے کوئی مچھر بھی گزر جائے، مطلب کوئی میزائل یا کوئی بم پھینک دے، تو اس کے پاس آئرن ڈوم، یعنی اس میزائل کو آسمان میں ہی پکڑ کر ٹریک کر کے وہیں پر کریش کرتا ہے، اس کو آئرن ڈوم بولتے۔ ایسی ٹیکنالوجی، ایسی ڈیفنس سسٹم صرف یہودی کے پاس ہے۔ اتنی طاقتور وہ قوم کیسے بنی؟ صرف تعلیم کے ذریعے سے، صرف تعلیم کے ذریعے سے۔ اسی لیے مسلمانوں، میں نے تو ایک ایگزام میں نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کو فالو کیجئے، بلکہ جب ذلیل رسوا قوم تعلیم دنیاوی ہی سطح پر صحیح تعلیم کے ذریعے سے اپنی تقدیر بدل سکتی ہے، تو ہم اور آپ نہیں بدل سکتے؟ کون کہتا ہے کہ بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو بچہ ترقی نہیں کرے گا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام شیخ حسین ابن علی سینا، انہوں نے ایک کتاب لکھی القانون، اس کے اوپر ایم ڈی کی سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر۔ ایم ڈی ڈاکٹر بنانے کے لیے جو سلیبس ہے، ایم بی بی ایس کے بعد ایم ڈی بنتے ہیں، اس سلیبس میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے آج بھی، آج ریسنٹلی، آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، اس وقت میں، کہاں انگریز لندن میں پڑھاتے ہیں، اس کتاب کو لکھنے والا 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا تھا، اس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا، یعنی اس کتاب کا رائٹر حافظ ہے۔ بتائیے، بعد میں علم طب کے اندر مہارت حاصل کی، لیکن پہلے حافظ بنا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں، بہت ساری مثالیں جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے اور انہوں نے دنیا کے اندر میں بہت سارے احسانات۔ ایسا نہیں کہ بچہ مدرسے میں پڑھ لے گا، مکتب میں پڑھ لے گا تو بچہ ترقی نہیں کرے گا۔ بچے کو ماسٹر بنائیے، بچے کو آپ ڈاکٹر بنائیے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن بیفور آل تھنگ، ان سب چیزوں سے پہلے یو ہیو ٹو ایجوکیٹ یور چائلڈ اباؤٹ یور کانسیپٹ، عقیدہ۔ عقیدہ ضروری ہے۔ اپنے بچے کو عقیدہ بتائیے، نماز کے بارے میں بتائیے، زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے، حج کے بارے میں بتائیے، حقوق العباد کے بارے میں بتائیے، آخری نبی کے بارے میں بتائیے۔
इन सब के बारे में बताना हमारे और आपके लिए जरूरी है। और तालीम एक ऐसा रास्ता है जिससे इंसान महान बनता। इंसान दौलत से महान बनता तो कानून बनता, इंसान बादशाहत से महान बनता तो फिरौन बनता, इंसान अगर पैसों से पावर से महान बनता तो नमरूद बनता, इंसान अगर तानाशाही से डिक्टेटर से अगर कोई महान बनता तो हिटलर बनता। लेकिन बना इंसान अगर इशारों में दुनिया को तहस नहस कर दे तो अगर उसकी वजह से अगर कोई महान बनता तो कौन? हमारे सनातन धर्मी भाई हिंदू भाइयों का वो रावण बनता, अंधकासुर बनता, भस्मासुर बनता, विश्वासुर बनता, दुर्गम राक्षस बनता। लेकिन नहीं, दुर्गम राक्षस का वध करने वाला दुर्गी माता वो महान है, अंधकासुर का वध करने वाला काली मां वो महान है, कौरवों का खात्मा करने वाला पांडु महान है, और फिर इस रावण का खात्मा करने वाला राम महान है। क्यों? इनके अंदर ज्ञान था, रावण के अंदर ज्ञान नहीं था, राम में ज्ञान था, कौरवों में ज्ञान नहीं था, पांडु में ज्ञान था, दुर्गम राक्षस में ज्ञान नहीं था, दुर्गे माता में ज्ञान था, और फिर अंधकासुर के अंदर में ज्ञान नहीं था, लेकिन काली माता के अंदर में ज्ञान था। तो पता चलता है कि इंसान ज्ञान से बड़ा होता, तालीम से बड़ा होता है। आदमी के अंदर ज्ञान होगा, आदमी में तालीम होगी, आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसकी सोच, उसकी हरकत, उसकी आदत अखलाक कुछ और होंगे। और एक कोरेस पीने वाला एक शराबी का आदत अखलाक अलग होगा, एक अनपढ़ और जाहिल आदमी की सोच और उसके किरदार और कैरेक्टर के अंदर जमीन और आसमान का फर्क होगा। अगर इंसान तालीम से महान नहीं बनता, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होगा, लेकिन इस देश के एक महान इंसान की जरूरत पड़ती। तो इस देश की तकदीर को कौन लिखेगा? तो यहाँ के डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचते हैं लंदन, वो अंग्रेज के सामने में दामन फैलाते हैं, आई नीड ए ग्रेट पर्सन, मुझे एक महान इंसान की जरूरत है। तो अंग्रेज ने कहा, व्हाई डिड यू कम हियर फ्रॉम इंडिया? इंडिया हैज ए ग्रेट पर्सन, इंडिया एग्जिस्ट्स इंटेलिजेंट पर्सन। तुम्हारे भारत के अंदर में एक बहुत महान इंसान, बहुत बड़ा ज्ञानी मौजूद है, जाओ वो तुम्हारे देश की तरक्की को बदल सकता, तुम्हारे देश की तकदीर को लिख सकता। कहा जरा बताइए कौन? कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा वो तो चमार है, चमार है, वो तो शूद्र है, वो तो डोम है। अंग्रेज ने कहा कि वो तुम्हारे भारत में होगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब सुनो, यू आर बैरिस्टर, आप बैरिस्टर हैं, ज्यादा से ज्यादा कानून के जानकार हैं, संविधान के जानकार हैं आप। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ कानून और संविधान का जानकार नहीं है, उसके पास 12 डिग्रियां हैं, एक और दो नहीं। चराग लेकर ढूंढने दे तो इस वक्त पूरे भारत के अंदर इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। दुनिया जानती है कि भारत की तकदीर लिखने वाला कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान समिति बनाई गई, संविधान समिति 7 लोगों की टीम बनी, उन 7 लोगों में चेयरमैन कौन बना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनमें एक मुसलमान भी थे जो आसाम के चीफ मिनिस्टर साहब भी बने, सादुल्लाह अंसारी गालिबर, यही नाम था। तो पता ये चला कि आदमी तालीम से महान बनता, ज्ञान से आप अपनी इज्जत के अंदर इजाफा कर सकते हैं। इसी को श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी कहा गया कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञान मान माम परपदिग्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा। संस्कृत है समाहात्मा, महाआत्मा इंसान किससे बनता है? ज्ञान से बनता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवमय मतम। इस मंत्र में तो ये कहा गया कि जिस अंदर के अंदर जिस इंसान में ज्ञान होता है उसको भगवान समझो, उसको पूजो। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान है, और जिसमें ये ज्ञान किसकी सिफत है? ईश्वर की सिफत है। और जिस इंसान के अंदर ईश्वर की सिफत आ गया, गोया ईश्वर आ गया, इसलिए उसके सामने नतमस्तक हो जाओ।
गीता कहती है। हमारे यहाँ नतमस्तक सिर्फ अल्लाह के सामने हो सकते हैं, किसी के सामने झुक नहीं सकते, अल्लाह के सामने ही झुक सकते। जब ज्ञान है, तालीम है, तो कुछ काम बनेगा। जब तालीम नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, तो लोग इस्लाम को भी बदनाम करते थे। अभी उत्तराखंड के अंदर इस्लाम के ताल्लुक से एक नया कानून पास किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जो कानून हिंदू के लिए वही कानून मुसलमान के लिए है। सिविल मामलों में, सामाजिक मामलों के अंदर यानी सब बराबर है, शादी ब्याह लेन देन खरीदो फरोख्त। इसीलिए उन्होंने कानून बनाया यकसा सिविल कोड। यानी इस्लाम में 4 शादी की परमिशन है, तो अब उत्तराखंड में कोई 4 नहीं कर सकता, एक ही शादी करेगा। क्यों? यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज हो गया। यानी हिंदू भी एक करेगा तो मुस्लिम भी एक करेगा। उन्होंने पता क्या समझ लिया, इसको 4 शादी को जरूरी समझ लिया, हालांकि जरूरी नहीं है। ये गलतफहमी कहां से दूर होगी? पढ़ाई से। उत्तराखंड का पुष्कर धामी तो पढ़ा लिखा है नहीं। उन्होंने कहा कि अच्छा, इस्लाम में 4 शादी, ये क्यों 4 शादी करेंगे जी? 4 शादी है इस्लाम में और ये जरूरी है, लो बंद करो इसको। इस्लाम में 4 शादी जरूरी नहीं, प्रावधान है, इजाजत है, परमिशन है। अगर किसी की बीवी कैंसर है, अल्लाह ना करे, किसी की बीवी को टीबी है या किसी की बीवी बांझ है, वो अपनी बीवी से अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा वो? तो इस्लाम ये कहता है कि दूसरी शादी कर सकते हैं। आपकी बात माने तो क्या करेगा? वो दूसरी शादी नहीं करेगा, वो जाकर कहीं पर नाजायज संबंध जोड़ेगा, नाजायज ताल्लुक कायम करेगा, जो कि गुनाह है, पाप है। किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी की बेटी की इज्जत नहीं लूट सकते, बहुत बड़ा पाप और जुर्म है। इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं। लेकिन उन्होंने क्या समझा कि नहीं, इस्लाम में 4 शादी जरूरी है। मेरे ख्याल से पूरे अररिया जिला में अगर डिबिया लेकर खोजेंगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी बैक वक्त 4 बीवी हो। नहीं भी दिखा सकते। हाँ, 2 बीवी वाले मिल जाएंगे आपको, बहुत मुश्किल से 3 बीवी वाले मिल जाएंगे, 4 बीवी वाले नहीं मिल सकते। एक प्रावधान है, जरूरी नहीं, लेकिन उन्होंने जरूरी समझा। कानून बनाया भी तो अधूरा कानून बनाया उन्होंने। ठीक है, आपने बनाया कि भाई एक शादी करे, एक आदमी को इस शादी को जरूरी करार देना था कि हर आदमी शादी करेगा फिर, यानी जो बालिग होगा, बालिग होने के बाद फौरन शादी करना जरूरी है। लेकिन ये कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि ये कानून बनाता योगी जी फंस जाते हैं। योगी जी की शादी नहीं हुई है। एक कानून और भी बनना था कि जो शादी करेगा बीवी से तो पूरी जिंदगी वफादारी करेगा, निभाएगा, खर्चा भी देगा, घर भी देगा, और उसकी जरूरत की जिंदगी जो है, जरूरियात जिंदगी, उसको भी पूरा करेगा। ये भी नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ये बनाता तो मिस्टर मोदी जी फंस जाते। 40 साल 42 साल से बीवी के साथ नहीं है, और गर्व से कहते हैं कि देखो मैंने बीवी को छोड़ा। कौन सा काम किया आपने जी बीवी को छोड़ा? अब तो बेवफा है। बीवी छोड़ने की चीज होती। रामचंद्र जी गए बनवास तो बीवी को लेकर गए, और आप बीवी को छोड़कर भाग रहे, उसकी जरूरत कौन पूरी करेगा? ये अशास्त्रीय बात, शास्त्रों में भी नहीं। शास्त्रों में यह है कि आप अपनी बीवी के साथ में रहें, उनकी जरूरत पूरी करें और आप उनका हक अदा करें, यह है। तो आदमी जब कोई चीज नॉलेज में नहीं आती है तो गलत फहमी बढ़ जाती है, और उसी गलत फहमी की वजह से फिर दंगे फसादात, झगड़े, लूट मार पीट। आज जो हिंदू मुसलमानों में जो इतनी तशद्दुद पैदा कर दी गई है, किस वजह से? जिहालत की वजह से, नाखानदगी की वजह से। वो तो ये समझते हैं कि इन मदरसों में जिहादी पैदा होता, इन मदरसों में तीर तलवार चलाने वाला पैदा होता है। आज तक कोई माए का लाल नहीं बता सकता कि किसी मदरसे में जिहादी पैदा हुआ हो, किसी मदरसे में तलवार चलाने वाला पैदा हुआ हो। बल्कि इन्हीं मदरसों की बरकत है कि बच्चे सुबह ठंड में उठते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। इनके कुरान करीम की तिलावत की बरकत से अल्लाह आने वाले अजाब को भी दूर कर देता है। और कुरान दुनिया की वो मुकद्दस किताब है, कुरान दुनिया का वो मुकद्दस कलाम है जिसके अंदर हर समस्या का समाधान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं तो यही कहूंगा सबसे कि बस इस फितन दौर में अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की कर सकें समाजी सियासी हर एतबार से, तो अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपना एक फंड बनाइए, एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को। मैं तो हिंदू भाइयों से भी कहता हूँ, सनातन धर्मी भाइयों से भी कहता हूँ कि तालीम दीजिएगा तो सही पता चलेगा, सही जानकारी हासिल होगी ईश्वर के बारे में, रब के बारे में, परमात्मा के बारे में, कि खुदा कौन है, कितना है, जन्नत जहन्नम कहाँ है। ये सब चीजें तो शास्त्रों में लिखा हुआ, नेताओं की बातों में नहीं लिखा हुआ है। नेता तो लड़ाते, हिंदू को भी लड़ाते, मुसलमानों को भी लड़ाते, सही बात शास्त्र में लिखा हुआ। शास्त्र पढ़िए। क्या हिंदू धर्म में कयामत का अकीदा नहीं है? कुरान में कहा, या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरा अन्नास सुकारा। 17 पारे में कयामत का चर्चा है। 30वें पारे में भी है, यौम यफ़िर्रुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि। हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म में भी है, ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस्लाम के अंदर में अल्लाह के नबी का अकीदा, आखिरी नबी का अकीदा है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। क्या आखिरी अंतिम अवतार का अकीदा हिंदू धर्म में नहीं है? हिंदू धर्म में भी है, अस्मल्लाहु इल्ली मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्र तेजस्कामय होतार बिंदरो महासुनिंदरो अल्लु देश से श्री संपन्नम ब्रह्मांडम अल्लु रसूल मोहम्मद रक्का बरस अल्लु अल्लामा। इस्लाम के अंदर में अजान का अकीदा है, नमाज का अकीदा है, अजान का अकीदा है, नमाज का अकीदा है। नमाज के बारे में है, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। हिंदू धर्म के अंदर भी है, पथमादार का जीवा दिए थे को डरा कार्य चतुर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। तर्जमा नहीं करूंगा, टाइम लगेगा, सिर्फ बता दे रहा हूं कि जो मतलब इस आयत का, इस हदीस का, वही मतलब हिंदू धर्म के अंदर शास्त्रों का। लेकिन सत्य यह है कि कुरान पढ़ाने वाला है, तो इसीलिए हमें और आपको मालूम है, शास्त्र को पढ़ाने वाला नहीं है, तो इसीलिए हिंदू भाइयों को मालूम है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, सैकड़ों मंत्र और श्लोक पढ़े जा सकते हैं भारत के अंदर। खैर चलिए, अल्लाह से दुआ करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं थका हुआ हूँ। कल मुस्तकिल 12-13 घंटे का सफर था, और फिर कल हमारा सफर होगा लंबा, कम से कम 8-9-10 घंटे का हवाई जर्नी होगी। तो हवाई जहाज के सफर में सबसे ज्यादा थकान होगी, सबसे ज्यादा। तो इसीलिए बहुत देर तक हम बात भी नहीं कर सकते और आराम करेंगे, बल्कि यहाँ के बाद एक जगह और जाना है श्यामपुर, वहां पर भी पहुंचना है और उंगली पर आकर शहीदों में नाम लिखाना है। हमें बड़ी खुशी हुई कि भाई आपके गांव में खूबसूरत सा इदारा है, इस्लाहुल मुस्लिम, फलाहुल मुस्लिम नाम से जो इदारा है। अपने बच्चों को भेजिए। इस्लाम मास्टर बनाने से मना नहीं करता, डॉक्टर बनाने से मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम भी कहता है कि बेसिक तालीम अपने मकतब और मदरसे में अपने बच्चों को बुनियादी तालीम इस्लाम की जरूर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कौम और समाज के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, ये कभी भी अपनी दीन का शिकार नहीं होंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह खुद मुझे इन सब बातों पर अमल की तौफीक दे जो मेरी जुबान से निकली है, और हम सबको सुनने से कहीं ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।